वेलकम क्लास, आप सभी का फिर से यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ आज के ज्योमेट्री सेशन में। तो आज जो हमारा ज्योमेट्री सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले विद द प्रॉब्लम सेट 3, दैट इज द प्रॉब्लम सेट ऑफ द सर्कल चैप्टर। सो द beginning of the problem set we are going to discuss about the first question, that is the MCQs. Okay, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था the remaining problems of the practice set 3.4। तो अब इससे आगे चलते हैं। सो प्रॉब्लम सेट 3 अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम सेट है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन जो ओमिटेड सिलेबस के प्रॉब्लम्स थे वो ओमिट करने के लिए मैंने आपको कहा था उन पे क्रॉस करें, वो प्रॉब्लम्स हम इस प्रॉब्लम सेट में नहीं लेने वाले। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द एमसीक्यू, two circles of a radii 5.5 centimeter and 3.3 centimeter respectively touch each other. What is the distance between their centers? अब आपको यहां पे कहा गया है कि आपको दो टचिंग सर्कल्स दिए हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया दे आर टचिंग इंटरनली और दे आर टचिंग एक्सटर्नली। इट मींस you have to find out the distance between their centers using the both of the possibilities। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको स्पेशलाइज करके नहीं बताना है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेशलाइज क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि वो इंटरनली टचिंग है या फिर एक्सटर्नली टचिंग है। तो जाहिर है आपका जो आंसर होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा। और बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स of two touching circles, if they are internally then equal to the difference of radii, if they are externally then equal to the sum of their radii। तो यहाँ पे हमें R1 और R2 दी है, R1 equal to 5.5 सेंटीमीटर, R2 equals to 3.3 सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल आप जानते हैं, दैट इज the point of contact of two touching circles lies on the line passing through their centers। तो इसका मतलब ये हुआ that is R1 plus R2 it is equal to 5.5 plus 3.3 equals to 8.8 one time, and R1 minus R2 it is equal to 5.5 plus minus 3.3 it is equal to 2.2। And the correct answer for the MCQ, that is option D, 8.8 or 2.2, because the given circles are not mentioned, that is they are internally touching or externally touching circles। Okay, तो ये रहा फर्स्ट MCQ का आंसर। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे। MCQ second, for the second MCQ we have two circles intersect each other such that each circle passes through the center of the other if the distance between their centers is 12, what is the length of their radii। अब आपको ये कहा गया है रेडियस ऑफ द ईच सर्कल, हर एक सर्कल की रेडियस आपको बतानी है, लेकिन आपको जो बताया है वो इस तरह से है, two circles are intersect each other such that every circle passes through the center of the other। तो हर एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होता है। फॉर एग्जांपल सर्कल विद सेंटर O and circle with center P, they are passing to the centers of each other and the distance between the centers is given 12 centimeter, that is actually OP, but we can observe here OP is the radius of the circle with center O and PO is the radius of the circle with center P। So hence the distance between the centers of two circles, these two circles is 12 and the radius of each of the circle is also 12। तो आपका जो ऑप्शन है सेकंड एमसीक्यू के लिए वो ऑप्शन होगा बी, अगेन दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा सेकंड एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 3, नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू, एंड द क्वेश्चन इज a circle touches all sides of a parallelogram, so the parallelogram must be a which type of parallelogram। आपको फाइंड करना है कि एक सर्कल है जो एक पैरेललोग्राम के इंटीरियर में होके उसको हर एक साइड में टच करता है, then it will which type of parallelogram we have to find। तो आपको वो किस तरह का पैरेललोग्राम है ये फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल में यहां पे निकालूं,
Suppose this is a circle which touches the every side of a quadrilateral or a parallelogram. Then this parallelogram is which type of parallelogram? तो आपके जहन में यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो पहले मैं आपको बता दूं. द फर्स्ट ऑप्शन रेक्टेंगल, बी रोम्बस, थर्ड स्क्वायर एंड फोर्थ वन ट्रेपेजियम. तो कौन से टाइप का आपका पैरेललोग्राम होगा जिसको एक सर्कल हर एक साइड में अंदर से टच करता हो? लेकिन ट्रेपेजियम तो हो ही नहीं सकता, ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो चौथा ऑप्शन ओमिट हो गया. अब रेक्टेंगल में तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते कि कोई सर्कल उसके चारों साइड को टच हो, क्योंकि उसमें जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट दे आर डिफर्स बाय द एडजेसेंट साइड्स. तो सर रेक्टेंगल भी नहीं है. अब बचे रोम्बस और स्क्वायर. तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्क्वायर भी हुआ तो ये रोम्बस होगा. इट विल आल्सो बी अ रोम्बस एंड एवरी रोम्बस इज आल्सो बी अ पैरेललोग्राम एंड एवरी स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड के लिए वो अगेन दैट इज अ बी. इट इज रोम्बस. तो रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके हर एक साइड को एक सर्कल उसके इंटीरियर में टच करता है. अब क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4. Now, so what is given? The length of a rectangle, length of a tangent segment drawn from a point which is outside the circle at a distance 12.5 centimeter from the center of the circle is 12 centimeter. Find diameter of circle. आपको यहाँ पे बताया गया है कि सर्कल को एक टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल से वो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किया गया है जो कि सर्कल के सेंटर से 12.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है. तो आपको फाइंड करना है डायमीटर ऑफ अ सर्कल. तो डायमीटर फाइंड करने के लिए पहले उस सर्कल की रेडियस आपको फाइंड करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल this is your circle, this is circle center and this is the point P suppose of length 12.5 centimeter and this one is a tangent segment that is PQ and the length of tangent segment is 12 centimeter, this one is 12.5 centimeter. So you have to find out the diameter of this circle. इसका मतलब आपको यहाँ पे OQ ज्वाइन करना पड़ेगा. अब OQ में एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम. ये हमें पता है. तो इसका मतलब बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट OQ दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे 12.5 होल स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इसका मतलब 12 स्क्वायर होगा. तो 12.5 का जो स्क्वायर है वो 156.25 है और 144 is the square of 12. Now the difference between these two that is 25.25. Sorry, 12.25. 12.25 ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा. इसका मतलब OQ स्क्वायर इक्वल टू 12.25 देन OQ इज इक्वल टू ये अंडर रूट 12.25 इट इज इक्वल टू 3.5. अब आपको रेडियस ऑफ द सर्कल मिली है 3.5 सेंटीमीटर. देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस देन द रेडियस. इसका मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल होगा 7 एंड द ऑप्शन दैट इज C 7 centimeter. The length of the diameter is 7 centimeter. This is the MCQ number 4. Now, next. MCQ number 5. If two circles touch externally, how many common tangents of them can be drawn? अब आपको ये कहा गया है फिफ्थ MCQ में कि अगर दो टचिंग सर्कल्स है जो कि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो उनको आप कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल these two are the externally touching circles. ये दो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हैं तो इनको कितने कॉमन टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो.
रिमेंबर दैट यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को स्पेशलाइज नहीं किया गया है द हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट। अगर ऐसा होता तो एक ही कॉमन टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको पूछा है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू टू एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ से इस तरह से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर तीसरी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो द ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी 3 common tangents can be drawn to any two touching external touching circles। तो ये रहा आपका MCQ नंबर 5। नाउ MCQ नंबर 6। Sixth one, and the question is angle ACB is inscribed in arc ACB of a circle with center O if angle ACB equal to 65 degree then what is the measure of arc ACB। आपको ये कहा गया है कि एक एंगल है, सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल है। सपोज वी हैव अ सर्कल एंड हियर इज एंगल ACB। दिस इज एंगल ACB। मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 65 डिग्री, देन What is the measure of arc ACB? आपको arc ACB का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो सिंपल है, arc ACB का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए पहले उसकी करस्पॉन्डिंग arc AB का मेजरमेंट हमें फाइंड करना होगा। और AB का मेजरमेंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं ये हमें पता है। एंगल ACB इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ arc AB बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ arc AB by inscribed angle theorem। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से इस तरह से आएगा, तो 65 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AB। तो आर्क AB जो होगा यहाँ पर 2 इधर आएगा, सो द मेजर ऑफ आर्क AB इट इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब आर्क AB का जो मेजरमेंट है वो 130 डिग्री आया है, दिस वन इज 130 डिग्री। नाउ वी कैन फाइंड आउट आर्क ACB बाय हाउ? सिंपली बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मेजर आर्क। और मेजर आर्क का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हमें माइनर आर्क का मेजरमेंट जो है वो टोटल मेजर ऑफ द सर्कल में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ मेजर ऑफ आर्क ACB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क AB। इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री इट इज इक्वल टू 230 डिग्री। सो द मेजर ऑफ आर्क ACB इक्वल टू 230 डिग्री एंड दिस इज द ऑप्शन दैट इज D। तो ये आपका ऑप्शन D है जो कि MCQ नंबर 6 के लिए। अब फाइंड करते हैं MCQ नंबर 8 बिकॉज एकेडमिक ईयर 2021 के लिए जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है उस पे आधारित जो MCQ नंबर है वो MCQ नंबर 7 आपको दिया है, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं लेंगे क्योंकि ओमिटेड सिलेबस है। तो अब MCQ नंबर 8। नाउ MCQ नंबर 8 और MCQ नंबर 8 आपको पूछा गया है दैट इज इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD in a cyclic quadrilateral ABCD twice the measure of angle A equal to thrice the measure of angle C, then find the measure of angle C। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD में जाहिर है कि ABCD अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जो कि साइक्लिक है, आपको बताया है ABCD। So angle A and angle C are the opposite angles, so by using the theorem of cyclic quadrilateral we can find out the measure of angle C because opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, हमें पता है। लेकिन उसे अप्लाई करने के पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज गिवन। 2 एंगल A इक्वल्स टू 3 एंगल C, ये आपको गिवन है। आपको कहा गया है कि ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू द थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C। तो इसका मतलब ये आता है एंगल A अपॉन एंगल C इक्वल टू 3/2। इसका जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। अब इसको हम 3x कंसीडर करेंगे और इसको हम 2x कंसीडर करेंगे।
अब बट बाइसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, बट ए इक्वल टू 3x प्लस 2x is equal to 180 degree. So it is 5x equal to 180 degree. So x equal to 180 by 5. It is equal to, we get, that is 36 degree. So the measure of x is, or the value of x is 36 degree. Therefore angle C is equal to 2x equal to 2 into 36 degree is equal to 72 degree. The option, which one is the correct option? Option B. Again, option B is the correct option. So the answer for the 8th MCQ, that is B, equal to 72 degree. It means measure of angle C equal to 72 degree. अब बढ़ते हैं MCQ नंबर 9 की तरफ। MCQ 9, and what is the given question? Point A, B and C are on a circle such that measure of arc AB equal to measure of arc BC equal to 120 degree. No point except point B is common to the arcs which the type of triangle ABC. अब आपको कहा गया है कि एक सर्कल है आपके पास, we have a circle and the 3 points, point A, point B and point C are the 3 points on a circle, and measure of arc AB equal to measure of arc BC are given 120 degree each. 120 degree each. Then which type of triangle ABC? यहाँ पे अगर हम A, B and C ज्वाइन कर ले तो आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको बताना है which type of triangle ABC. तो जाहिर बात है that is angle BCA is the inscribed angle. Therefore the measure of angle BCA is half to the 120 degree. It is 60 degree. Similarly we get angle BAC is half to the BC is also equal to 60 degree, and this is the remaining angle is also equal to 60 degree. So the option number, that is A, is the correct option. Triangle ABC is an equilateral triangle. तो ट्रायंगल ABC जो होगा वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये है सॉल्यूशन फॉर द 8th MCQ, 9th MCQ. Now last question, that is problem number 10. अब आखिरी last MCQ, MCQ number 10, and again we have to draw a circle. For example, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है और अकॉर्डिंग टू दिस सर्कल वी हैव सम स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है पहले अच्छी तरह से सुन लेते हैं। सेगमेंट XZ इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो यहां पे ड्रॉ करूं मैं सेगमेंट XZ is a diameter of a circle. Let the O is the center of the circle. Next, point Y lies in the interior. Point Y, suppose here is point Y. Point Y lies in the interior of the circle. How many of the following statement are true? नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट ट्रू है इस फिगर के लिए? वो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं हम देखते हैं। यहाँ पे कुल 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं और कितने स्टेटमेंट ट्रू है कितने स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें जस्टिफाई करना है। तो पहला, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एंगल XYZ इज एन एक्यूट एंगल। ये पॉसिबल नहीं है कि आपका एंगल XYZ जो है वो एक्यूट एंगल है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस सेट 3.4 थी, उस प्रैक्टिस सेट 3.4 में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रैक्टिस सेट 3 का प्रॉब्लम नंबर जो 4 था, उसमें हमने एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल प्रूव किया था। इसका मतलब बट एंगल RTS का जो पॉइंट RT था वो पॉइंट थी इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल था, और उसी
जैसे XZ यहाँ पे डायमीटर है, उसी तरह वहां पे RS डायमीटर ऑफ द सर्कल था। इसका मतलब जाहिर है इफ the angle subtended by or the vertex of the angle subtended by a diameter of a circle is in the exterior of the circle, then it is always acute angle। तो वो हमेशा acute angle होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, if we join point T, then we have now अब according to the fourth problem of the practice set 3.4, angle XTZ is less than 90 degree, it is acute, less than 90 degree। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट हम P लेते हैं, जॉइन PZ, नाउ एंगल XPZ is equal to 90 degree because this is right angle। ये राइट एंगल है, क्यों राइट एंगल है? Because angle inscribed in the semicircle is right angle। ये corollary of the inscribed angle theorem हमने देखी, करेक्ट। एंगल XPZ का वर्टेक्स कहाँ है? सर्कल पे, का दूसरा मेजरमेंट 90 डिग्री है। XTZ का जो वर्टेक्स है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, इसकी वजह से एंगल XTZ एक्यूट एंगल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप XZ से सबटेंड किया हुआ एंगल का जो वर्टेक्स है वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा तो वो एंगल ऑब्ट्यूज होगा, दैट इज एंगल XYZ इज और ग्रेटर देन 90 डिग्री बिकॉज़ दिस इज ऑब्ट्यूज। तो अब स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ लो। पहला स्टेटमेंट है इट इज नॉट पॉसिबल एंगल XYZ इज एन एक्यूट एंगल, ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है एंगल XYZ कांट बी अ राइट एंगल, करेक्ट। एंगल XYZ राइट एंगल भी नहीं होगा बिकॉज़ वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है, अगर सर्कल पे होता तो राइट एंगल होता। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा XYZ इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, एग्जैक्टली जैसे मैंने यहां पे आपको बताया है, एंगल XYZ ग्रेटर देन 90 डिग्री सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। और चौथा स्टेटमेंट है कांट मेक अ डेफिनेट स्टेटमेंट अबाउट द मेजर ऑफ एंगल XYZ। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब हम कोई तो स्टेटमेंट बना सकते हैं रिगार्डिंग टू द मेजर ऑफ एंगल XYZ। तो इस तरह से आपको ये पता चलता है कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज फोर्थ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस तरह से हमने यहां पे देख लिया है फर्स्ट क्वेश्चन ऑल MCQs। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।